You were saying, I don't know, you were saying now you are refusing, you are not accepting the truth. But no problem. You are, you don't want I to. think that you have a wrong information, sir. Maybe. Let's see. Okay, so let's come to the point. And yesterday, previously, last time we were conversing the question format. We have talked about the question format, and we have discussed that there are two kinds of questions, and there is one simple question and there is one informative question. We have discussed that in Hindi, when we ask a question, so we use one extra word. In Hindi, when we ask a question, we use one extra word. But in English, it doesn't happen. In English, when we make the question, we just use the time word first. The question format is time word, doer, action. And there are two simple question and info question. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. So last time we were conversing, we were having a talk that we have two kinds of question. We have simple question and we have informative question. Yesterday you guys were conversing simple question, and yesterday I taught simple question. Simple question means the questions which you can answer in yes or no. Means any question which can be answered in yes or no will be called simple question. Suppose I am asking you, do you study? So you can say yes, I study, or I don't study. I am asking you, will you take the class tomorrow? You are saying I will take the class tomorrow, or I won't take the class tomorrow. So the question which can be answered in yes or no will be called simple question, and the question which cannot be answered in yes or no, where you need to give the information, will be called informative question. We have discussed that the words you may have studied, you may have heard the words what, where, why, with whom, all these words. We don't make question with all these words. What? Okay. So there is one word I have written what. What doesn't make the question. Okay, what, where, or I'm writing how, or I'm writing with whom. Okay, whom. So just like I have written some words, I have written what, where, how, with whom, how soon. More words are there. For example, I have written these. So you don't make question with all these words. You cannot say that wherever you are seeing these words, you cannot say this is question. Every time when you see what in the sentence, it doesn't mean it's question, because having like the thing, the format of question is time or doer action. So doesn't matter what is written, doesn't matter what is written, where is written, why, how is written, why is written, doesn't matter. If there is no question format, if there is no timer doer action, it's not question. And now we'll talk about that what, where, why, whom, with whom, and all these things. So I'm asking a question. मैंने कहा कि क्या आप कुछ सीखते हैं? ओके, क्या आप कुछ सीखते हैं? Tell me, it's a simple question or informative question? It's a simple Informative question or informative? Simple question or informative question? informative. इंफॉर्मेटिव. ओके, बताइए क्या मैं इस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ? क्या आप कुछ सीखते हैं का जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ? नो. क्यों नहीं दे सकता? मैंने पूछा क्या आप कुछ सीखते हैं, आपने बोला हाँ सीखता हूँ, आपने कहा नहीं सीखता। क्यों नहीं दे सकता भाई? दे तो सकता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आप कुछ सीखते हो क्या आप कुछ सीखते हो? आपने कहा हाँ सीखता हूँ भाई। आपने कहा नहीं सीखता मैं कुछ भी, तो दे तो दिया यस और नो में। कैसे हो गया ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन? इन्फॉर्मेटिव ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे ही नहीं सकते। मैंने आपसे पूछा आप कुछ सीखते हैं क्या, आपने बोला हाँ, हो तो गया।
बताइए कैसे हो गया इंफॉर्मेटिव? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना? आप सोच के देखो, सिंपल क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, हम दे तो सकते हैं। मैंने पूछा आप कुछ खाते हो, मैंने पूछा खाते भी हो कुछ, आपने बोला हाँ खाता हूं ना, हो गया जवाब, सिंपल क्वेश्चन। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, वो होगा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ही नहीं। तो मैंने, है ना, इसको मैंने पूछा, और सिंपल क्वेश्चन बनेगा आपका टाइम वर्ड डूअर एक्शन। सो डू यू लर्न समथिंग? आपको सीखते हैं क्या? डू यू लर्न समथिंग? बिकॉज बिकॉज इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। देखो, समथिंग और एनीथिंग का मीनिंग, समथिंग और एनीथिंग से हम कंफर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डूअर कुछ करता है, कुछ खाता है, कुछ पीता है या नहीं करता। ओके, डू यू लर्न समथिंग, या फिर आप क्वेश्चन करते हैं डू यू लर्न एनीथिंग। और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, समथिंग और एनीथिंग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एनीथिंग से आप क्वेश्चन करते हैं जब आपको हिंट नहीं मिलता, जब आपको तुक्का मारना होता है। और समथिंग से क्वेश्चन करते हैं जब आपको हल्का सा हिंट मिल गया होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि आपका एक दोस्त है। ओके, आपका एक दोस्त है, और आपने उसे कभी किसी कोचिंग में जाते हुए नहीं देखा, कभी आपने उसे पढ़ते हुए नहीं देखा। ओके, अब ऐसे में वो बोलता है कि भाई मैं तो ये पढ़ता हूं। अब आपको तो नहीं पता, आपने तो उसे कभी देखा ही नहीं, और आपने पूछा उससे कि भाई तू कुछ पढ़ता है क्या, तो कुछ पढ़ता भी है। तो आप पूछेंगे डू यू लर्न एनीथिंग? क्यों? क्योंकि आपको कोई हिंट नहीं, आपने कभी उसको कोई भी हिंट नहीं मिला, आपने यहाँ पे तुक्का मारा, यू हैव मेड अ फ्लूक। उसी के अपोजिट अगर आपको हिंट मिलता है, अगर आप अपने दोस्त को देखते हैं, जैसे मान लो आपका दोस्त कहीं बैग लेके जा रहा है ना, और अब बैग लेके जा रहा है तो सब अब हिंट मिल ही रहा है कि हाँ भाई कहीं जा रहा है पढ़ने। इस सिचुएशन में आप क्वेश्चन करेंगे तो डू यू लर्न समथिंग, बस सिंपल सा यही डिफरेंस है। एनीथिंग से क्वेश्चन करते हैं जब आपको हिंट नहीं मिलता, जब आप तुक्का मारते हैं, और समथिंग से मतलब आपको हिंट मिलता है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। तो मैंने यही क्वेश्चन किया कि आप कुछ सीखते हैं, डू यू लर्न समथिंग, सिंपल सर क्वेश्चन। अल्टरनेट यूज कर सकते हैं दोनों को ना? हाँ, यू कैन यूज इट, यू कैन ओके यूज इट। सर। ओके, नाउ मैंने कहा कि हाँ मैं कुछ सीखता हूं, आई लर्न समथिंग। मैंने कहा आई लर्न समथिंग, ये था सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्या आप कुछ सीखते हैं, ये था सिंपल क्वेश्चन। डोंट गो थ्रू द ट्रांसलेशन, आई एम नॉट टीचिंग द ट्रांसलेशन। अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो कितना ट्रांसलेट है ना, क्या 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 के थ्रू मत जाना। देखो क्वेश्चन में, हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है मैंने क्या से शुरू किया, लेकिन वी आर नॉट लर्निंग ट्रांसलेशन। हिंदी के तो क्वेश्चन ही शुरू होंगे क्या से, लेकिन आपको ये देखना है कि सिंपल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। अब दूसरा मैंने पूछा, अब कंफर्मेशन हो गया, कंफर्मेशन हो गया, है ना, कि मैंने कहा मैं आई लर्न समथिंग, मैं कुछ सीखता हूं, कंफर्मेशन हो गया। अब मुझे जानना है, आपको जानना है चीज का नाम, यू वांट टू नो द नेम ऑफ द थिंग्स, यू वांट टू नो द नेम ऑफ द थिंग्स। अब आपको चीज का नाम जानना है। मैंने कहा आई लर्न समथिंग, मैं जब कहता हूं आई लर्न समथिंग, आई ईट समथिंग, आई ड्रिंक समथिंग, आई स्टडी समथिंग, आई डू समथिंग, इससे कंफर्मेशन पूरा होता है कि हाँ आप कुछ काम करते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो स्पेसिफिक काम क्या है। जब आप कहते हैं कि हाँ हाँ सर आई आई डू समथिंग, मतलब इसका मतलब कि हाँ मुझे ये पता चला कि आप कोई काम तो करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो स्पेसिफिक काम क्या है ना। आई डोंट नो द नेम ऑफ द थिंग्स। और चीज का नाम जानने के लिए, समथिंग को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हाट। व्हाट, नाउ व्हाट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा टाइम वर्ड डूअर एक्शन से। मात्र व्हाट लिखने से क्वेश्चन नहीं बन गया, व्हाट के बाद जो फॉर्मेट यूज करेंगे कि व्हाट के बाद आया टाइम वर्ड डूअर एक्शन। अगर व्हाट के बाद टाइम वर्ड डूअर एक्शन का फॉर्मेट आया, तो इसका मीनिंग है आप इंफॉर्मेशन जान रहे हो, इसका मीनिंग है क्या? अगर व्हाट के बाद, अगर व्हाट के बाद टाइम वर्ड डूअर एक्शन का फॉर्मेट आया, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन जान रहे हो, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब आप जानना चाहते हो, आप चीज का नाम जानना चाहते हो कि आप क्या सीखते हैं। सो व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू लर्न। ओके, अब जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये क्वेश्चन है या आंसर, तो आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन है,
प्लस मैं पूछूंगा रीजन क्या है, आखिर क्या रीजन है कि क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, यहाँ टाइम वर्ड डूअर एक्शन है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर यहाँ व्हाट है इसलिए क्वेश्चन है, भैया मैं अभी व्हाट से आंसर भी दूंगा। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर व्हाट है इसलिए आंसर क्वेश्चन, नहीं नहीं, मात्र व्हाट के होने या ना होने से क्वेश्चन आंसर पता नहीं चलना। व्हाट के बाद जो फॉर्मेट है, व्हाट के बाद टाइम वर्ड डूअर एक्शन का फॉर्मेट है, और व्हाट के बाद टाइम वर्ड डूअर एक्शन का फॉर्मेट है, तो उसका मीनिंग है आप इंफॉर्मेशन जा रहे हो, आप पूछ रहे हो क्या, आप क्या सीखते हैं, है ना, आप क्या सीखते हैं। जब मैं कहता हूं आप क्या सीखते हैं, तो आप, मैंने पूछा क्या सीखते हैं आप, अब ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ना, क्या सीखते हैं आप, क्या सीख, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। जब मैंने पूछा क्या सीखते हैं आप, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, मैंने कहा क्या खाते हो भाई, क्या खाते हो सुबह के समय, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा क्या खाते हो। मैंने पूछा भाई क्या क्या पढ़ते हो आप, क्या पढ़ाई करते हो, तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। क्या तो आ रहा है, क्या हम लोग ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि आपको समझना है, आपको फील करके देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं या नहीं। अगर हाँ या ना में दे सकते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है, और नहीं दे सकते तो इन्फॉर्मेटिव, मतलब एक इन्फॉर्मेटिव वर्ड आएगा वहां पे। तो मैंने पूछा क्या सीखते हैं आप, तो इन्फॉर्मेटिव वर्ड है व्हाट। व्हाट वी यूज टू नो द नेम ऑफ द थिंग्स, व्हाट का यूज करते हैं चीज का नाम जानने के लिए। सो व्हाट, फिर टाइम वर्ड है डू, डूअर है यू, एंड एक्शन लर्न, व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हैं। ओके, आप क्या सीखते हैं। अब जैसे देख लो, मान लो सौरभ सर इज देयर एंड सूरज सर है हमारे। अब सौरभ सर ने पूछा सूरज सर से कि क्या भाई सूरज सर क्या सीखते हो, व्हाट डू यू लर्न। सूरज सर ने बोल दिया कि मैं क्या सीखता हूँ भाई, मैं तो वही सीखता हूँ जो तू सीखता है ना, दोनों एक ही क्लास में बैठे हो, दोनों इंग्लिश सीख रहे हो, तो सूरज सर का भी मजाक का मूड। उन्होंने कहा ये कैसा क्वेश्चन होगा भाई, मैं तो वही सीखता हूँ जो आप सीखते हो। तो सूरज सर कहेंगे, सूरज सर को अब व्हाट से आंसर देना है, तो सूरज सर कहेंगे, है ना, अब देखो व्हाट से आंसर देना है तो भाई आंसर का फॉर्मेट चाहिए, तो व्हाट डूअर टाइम वर्ड एक्शन। अगर व्हाट के बाद आंसर फॉर्मेट है तो व्हाट का मीनिंग होता है जो। तो सूरज सर ने कहा जो आप सीखते हो, तो वो कहेंगे व्हाट यू लर्न, ये है आंसर। सौरभ सर ने पूछा कि भाई सूरज सर अरे क्या सीखते हो भाई आप, व्हाट यू लर्न, सूरज सर ने बोला वही भाई वही जो आप सीखते हो, सो व्हाट यू लर्न। तो ये बना व्हाट से आंसर। सारा खेल फॉर्मेट का ही है। सही टाइम पे ये बहुत बार देखा जाता है कि सही क्वेश्चन नहीं बोलता है, प्रॉब्लम ये है। आंसर तो बोल ही जाता है कुछ ना कुछ करके, लेकिन क्वेश्चन नहीं बोलता है। आप देखना काफी बार आप देखेंगे, जब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है तो वो क्वेश्चन का फॉर्मेट यूज नहीं करता, उसको लगता है कि मात्र व्हाट लगा देने से क्वेश्चन हो गया। जैसे जैसे पूछना होता है कि आप क्या करते हो, तो बोलता है व्हाट यू डू, बोलता है व्हाट यू डू, है ना। भाई क्या खाते हो, व्हाट 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 यू ईट, ऐसे बोलता है। लेकिन मात्र व्हाट लगा देने से क्वेश्चन नहीं हो गया। व्हाट के बाद अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट है टाइम वर्ड डूअर एक्शन, तो व्हाट से आप इंफॉर्मेशन जान रहे हो कि बंदा क्या करता है, क्या खाता है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है। क्वेश्चन फॉर्मेट है तो टाइम वर्ड डूअर एक्शन। और अगर व्हाट के बाद आंसर फॉर्मेट है तो व्हाट का मीनिंग होता है जो, जो आप करते हैं। भाई क्या सीखते हो, व्हाट डू यू स्टडी, जो आप सीखते हो व्हाट यू स्टडी। भाई क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, है ना, क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। आपने कहा व्हाट, है ना, क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन फॉर नाम जानना चाहता हूं, व्हाट डू ईट, वही जो आप खाते हो, व्हाट यू ईट, आंसर हो गया। आंसर हो गया ना। भाई क्या लिखते हो आप, है ना, व्हाट डू यू राइट, क्वेश्चन है, बिकॉज चीज का नाम जानना चाह रहा हूं, क्या लिखते हो भाई, वही जो आप लिखते हो, व्हाट यू राइट, व्हाट यू राइट, है ना। सो दैट्स द थिंग लेट मी हाईलाइट, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। कॉन्वर्सेशन को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है तो मैं जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि और आज आपको कल वाला ही कन्वर्सेशन करना है, क्योंकि कल का कन्वर्सेशन कुछ खास रहा नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि आपको बिना मिस्टेक्स किए अच्छे से बोलना है, तो एक दिन और हम उसी को कन्वर्स करने वाले हैं। बाकी मैं ये समझा दूं आपको। अब नाउ दिस इज अ थिंग, व्हाट टाइम, यही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको व्हाट के साथ बता रहा हूँ कि व्हाट के बाद अगर टाइम वर्ड डूअर एक्शन है तो क्वेश्चन है वो, व्हाट के बाद डूअर टाइमर एक्शन है तो आंसर है वो। यही कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट जितने भी इंफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे वाई, हाउ, विद whom, हाउ सून, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, ये जितने भी वर्ड होते हैं, हाउ ऑफन, ये सारे कॉन्सेप्ट से यही कॉन्सेप्ट ये सब में लागू होंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, याद रहे क्वेश्चन मात्र टाइम और डू और एक्शन से बनता है ना। चीजों को बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं ना। याद रहे जो क्वेश्चन है हमेशा, जो क्वेश्चन है वो हमेशा टाइम वर्ड डू और एक्शन से बनता है, ओनली टाइम वर्ड डू और एक्शन से ही बनेगा। तो अगर अब जैसे मैंने लोकेशन, अब मुझे लोकेशन जानना है तो मैं वेयर यूज करूंगा। मुझे लोकेशन जाना है तो वेयर, टाइम वर्ड, डूअर, भाई लोकेशन जानना है। अगर वेयर के बाद, अगर वेयर के बाद क्वेश्चन फॉर्मेट है, अगर वेयर के बाद क्वेश्चन फॉर्मेट है, तो आप लोकेशन जानना चाहते हो, है ना, कि कहाँ, भाई कहाँ सीखते हो, वेयर डू यू लर्न, है ना, वेयर डू यू लर्न, है ना, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ सीखते हो, वेयर डू यू लर्न। अब ये है क्वेश्चन। जब मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्वेश्चन या आंसर आपका होगा कि दिस इज अ क्वेश्चन बिकॉज वी आर यूजिंग क्वेश्चन फॉर्मेट टाइम वर्ड डू एक्शन। वेयर लिखने से क्वेश्चन ही बना, वेयर तो भाई वेयर से तो बात लोकेशन पूछा, आप तो लोकेशन जानना चाहते हैं, वेयर लिखने से आप मात्र लोकेशन जानना चाहते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन बना टाइम वर्ड डूअर एक्शन। ग्रामर की भाषा में अगर समझे, सो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, इसके फॉर्मेट से बना क्वेश्चन। सो वेयर डू लर्निंग, मैं आंसर भी दूंगा वेयर से, वेयर, डूअर, टाइम वर्ड। अगर वेयर के बाद आपका आंसर फॉर्मेट है तो वेयर का मीनिंग हो गया जहां। सो वेयर यू लर्न, जहां आप सीखते हो, वेयर यू लर्न इंग्लिश, जहां आप सीखते हो। लो, वेयर से आंसर हो गया, वेयर यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो, वेयर यू लर्न इंग्लिश, जहां आप सीखते हो, वेयर यू लर्न इंग्लिश। आप आप कहाँ रहते हो, सो क्योंकि क्वेश्चन है कहाँ, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, जहां आप रहते हो, वेयर यू लिव, है ना। आप कहाँ लिखते हो, वेयर डू यू राइट, जहां आप लिखते हो, वेयर यू राइट, है ना। आप गाना कहाँ गाते हो, वेयर डू यू सिंग, जहां आप गाते हो, वेयर यू सिंग। सो द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर, लेट मी हाईलाइट इट। यही कॉन्सेप्ट सेम, है ना, यही कॉन्सेप्ट सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। बता दूं, क्वेश्चन मात्र टाइम पर डू और एक्शन से ही बोलना है, कोई भी सेंटेंस लिखा रहा है, ये जितने भी व्हाट, वेयर, व्हाई का दिमाग में कंफ्यूजन होता है, आप में से जितनों को लगता है कि व्हाट से क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूं नहीं बनता, टाइम वर्ड और एक्शन ही चाहिए। व्हाट से मात्र आप इंफॉर्मेशन जानते हैं, और ये यही रूल, यही कॉन्सेप्ट जितने भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होंगे सब में लागू होगा। जैसे मैंने व्हाट से बोला, वेयर से। अब मुझे जानना है कि कैसे, आप कैसे सीखते हो, हाउ। अगर हाउ से क्वेश्चन करना है तो हाउ के बाद टाइम वर्ड डू और एक्शन लाओ, हाउ के बाद टाइम वर्ड डू, हाउ के बाद अगर टाइम वर्ड डू और एक्शन है तो हाउ का मतलब है कैसे, है ना। आप कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न। और हाउ के बाद अगर आंसर फॉर्मेट है डूअर, टाइम वर्ड प्लस एक्शन, तो हाउ का मीनिंग हो गया जैसे। भैया कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, है ना, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, भाई जैसे आप सीखते हो, जैसे आप सीखते हो, हाउ। लो, हाउ से आंसर भी हो गया। अब हाउ देख के लगने नहीं, अब कहीं भी हाउ आ जाए इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन फॉर्मेट बात करेगा, देखो इससे भी बन गया, सेम थिंग, सेम थिंग। हाँ, और क्वेश्चन करता हूँ, और क्वेश्चन करता हूँ, हाँ, आई विल शेयर दिस स्लाइड, ओके, और क्वेश्चन करता हूँ। तो व्हाट से हो गया, एंड वेट, ओके, नाउ। अब मैंने पूछा कि आप इंग्लिश किसके साथ सीखते हैं, विद whom, विद whom। अगर विद whom से, विद whom का मतलब कि काम को किसके साथ मिलकर करते हो, विद whom का मतलब काम को किसके साथ मिलकर करते हो। तो अगर क्वेश्चन करना है तो टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन, बस।
और अगर विद whom के बाद टाइम वर्ड डूअर एक्शन है तो मतलब विद whom का मतलब है किसके साथ। किसके साथ सीखते हो इंग्लिश? विद whom डू यू लर्न इंग्लिश। और अगर वही आंसर देना है सो विद whom डूअर टाइम वर्ड एक्शन और विद whom का मीनिंग जिसके साथ। जैसे मैंने कहा विद whom यू लर्न इंग्लिश, सेम कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको दो चीजों पे कमांड चाहिए, आपको दो चीजों पे कमांड करना सीखना है कि सही क्वेश्चन कैसे पूछा जाए और सही आंसर। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो स्टार्टिंग की हमारी दूसरी या तीसरी स्लाइड थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि हमें सीखना है कि क्वेश्चन, हाउ डू वी आस्क द क्वेश्चन, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव द आंसर। I told you in the starting that you need to learn how to ask the question and how to give the answer. And it's really important for you to ask the correct question. It's really important for you to understand the thing. You need to understand that whenever you are making the question, if you are making the question, so the question format is time doer action. अगर सेंटेंस में टाइम डूअर एक्शन नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई। भले ही व्हाट है, वेयर है, हाउ है, व्हाई है, वो फर्क नहीं पड़ता है ना। दो ही चीजें, मात्र हम दो ही चीजों पे बात कर रहे हैं। और अभी भी जो कॉन्वर्सेशन जो हम लोग डिबेट करवाएंगे आपको, जैसे आपका डिबेट होगा या ग्रुप डिस्कशन हम करवाएंगे, तो उसमें जो भी गलतियां होंगी, आप, मैं पहले ही बता दे रहा, गलतियां यही होंगी। जो भी गलतियां होंगी आपकी यही होंगी कि सही क्वेश्चन नहीं बनेगा, सही आंसर नहीं बनेगा। और इन्हीं सब चीजों को बार बार बोल बोल के, लिख लिख के, बोल बोल के देखना है, जुबान पे आ जानी चाहिए चीजें, है ना। ओनली नोइंग द थिंग्स विल नॉट इनफ। एज आई वाज सेइंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। वी नीड टू लर्न, वी नीड टू हैव अ टॉक। इतनी सी चीजें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको, मतलब चीजों को बार बार सीखने में, क्योंकि कॉन्वर्सेशन ज्यादा करना है हमें। इतनी सी चीजें, जैसा मैंने कल इसके बारे में और आपको थोड़ा बहुत बताया था। आपको याद हो, मैंने कहा था कि आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यू आस्क टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। Simple question, the question which can be answered in yes or no will be called simple question, and the informative question, the question will not be answered in yes or no, will be called informative question. That's the thing. Anybody wants to ask any question? कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहता है? बताइए, anybody wants to ask any question? यस सर। Please ma'am ask. सर आपके जो सेंटेंस है उसमें डू हिडन है क्या? यस ना? हाँ हाँ, किस, ये जो आंसर दे रहा हूं मैं, हाँ सर, आंसर में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट फॉर्मेट है, बस मैं शॉर्ट फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, डू इज हिडन। ओके सर। ओके, देखो जितना भी सेंटेंस में लिखा है, मैंने लिखा है सबसे पहले व्हाट यू लर्न। सो व्हाट यू लर्न का मीनिंग है व्हाट यू डू लर्न। जैसा मैंने बताया, डू एक ऐसा टाइम है जिसे हिडन किया जा सकता है, जिससे हटाया जा सकता है अगर आपका मन हो। तो आप व्हाट यू डू लर्न, यू लर्न, सब में हिडन है। जहां पे भी आपको मैंने आंसर दिया है, हाउ से, वेयर से, विद whom से, सब में मैंने डू शॉर्ट फॉर्मेट ही यूज किया बस। बट यस, टाइम वर्ड इज देयर, डू टाइम वर्ड इज हिडन। ओके सर। एनीबडी एल्स? Sir, I joined late, so can you give quick revision in simple ओके, ways? या श्योर श्योर श्योर, व्हाई Sir, नॉट। please record it to them. Yeah, sure, I will share. Okay. So I was saying that, see, I am saying that the question format, I am saying the question format is time word, doer, action. Okay. So I have taught, मैंने पढ़ाया है कि हिंदी में जब क्वेश्चन बोलता है तो एक शब्द ऐड होता है क्या। हिंदी में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या, हम क्या से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो हिंदी की बात है। इंग्लिश में जब क्वेश्चन होगा तो इंग्लिश में दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, एक तो होगा सिंपल क्वेश्चन, जिसका कॉन्वर्सेशन आपने कल किया, जो कि आज भी आप करेंगे। टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। मैं हिंदी में कोई भी क्वेश्चन बोलना है तो क्या लगा दो, है ना, जाते नहीं क्या लगा दो। इंग्लिश में मैंने अभी पढ़ा है, अभी तक की 2 क्लास में, इंग्लिश में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है सिंपल क्वेश्चन, एक होता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं,
सिंपल क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अब भले ही आपको सुनने में लगे कि क्या दिख रहा है क्या, लेकिन ट्रांसलेट नहीं करना। जैसे मैंने पूछा क्या आप कुछ सीख, मैंने पूछा क्या आप कुछ कुछ करते हो, क्या आप क्या आप कुछ करते हैं, मैंने पूछा क्या आप कुछ करते हैं। तो ऐसा सुनने में लगेगा कि भाई क्या आ रहा है तो व्हाट लगा दूं। आपको ऐसा लगेगा दैट, लेट मी शेयर द स्लाइड, है ना, आपको लगेगा क्या आप कुछ करते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई क्या आ रहा है तो व्हाट लगा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ सिंपल क्वेश्चन और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। सो क्या आप कुछ करते हैं, अब सुन के लग रहा है सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। और सिंपल क्वेश्चन बनता है टाइम और डूअर एक्शन से। तो टाइम पर डूअर यू, है ना, क्या डू यू डू समथिंग। तो मैंने कहा डू यू डू समथिंग। एक है टाइम वर्ड, पहला डू है टाइम वर्ड और दूसरा डू है एक्शन, डू यू डू समथिंग, दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव मेड। तो आपने कहा हाँ मैं कुछ करता हूं, आई डू समथिंग। शॉर्ट फॉर्मेट है ये, एक डू छुपा हुआ है, एक डू टाइम वर्ड डू हिडन है, जैसा हमने पढ़ा था। अब इसी चीज को अगर मैं अगर इंफॉर्मेटिव, क्या मैंने पूछा क्या करते हो आप, मैंने पूछा क्या करते हो आप देखो दोनों ही क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था क्या आप कुछ करते हो, तो सिंपल क्वेश्चन था, सो डू यू डू समथिंग, सिंपल क्वेश्चन, टाइम और डू एक्शन। और दूसरा क्वेश्चन है क्या करते हो आप, तो इसमें मैं इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं, मैं उस चीज का नाम जानना चाहता हूं जो आप करते हैं, तो मैं क्वेश्चन करूंगा व्हाट के साथ, व्हाट। ओके, माय वॉइस इज कमिंग, Yes, sir. discharged, it's showing red lights, see, ओके। सो अब मैंने क्वेश्चन किया क्या करते हैं आप, तो व्हाट। अब क्योंकि मैं चीज का नाम जानना चाहता हूं, इफ यू वांट टू नो द नेम ऑफ द थिंग्स, अगर आप चीज का नाम जानना चाहते हैं तो व्हाट यूज करते हैं। लेकिन व्हाट के बाद भी क्या, व्हाट के बाद भी क्वेश्चन फॉर्मेट, क्योंकि नाम जानना चाहता हूं बताना नहीं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं वही करता हूं जो आप करते हो। आपने क्वेश्चन किया कि व्हाट यू डू, ये क्वेश्चन है। इफ आई आस्क यू दैट इट इज क्वेश्चन और आंसर, सो यू से इट्स अ क्वेश्चन, बट व्हाई, बिकॉज टाइम वर्ड डू एक्शन इज देयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन है आंसर, तो आप कहेंगे ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। ये है डू टाइम वर्ड, फिर ये यू है टाइम, है ना, टाइम वर्ड, फिर यू है डूअर, और ये है एक्शन, ये है एक्शन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, है ना, टाइम वर्ड डूअर क्वेश्चन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, ये क्वेश्चन। वॉट, यहां पे वॉट लिखा है, इसका मतलब वॉट, वॉट दिखने से ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन है, क्योंकि वॉट से क्वेश्चन और आंसर दोनों ही हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू डू, अगर व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्मेट है तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या, मैं आप चीज का नाम जानना चाहते हैं। मैंने पूछा जो आप करते हैं, व्हाट यू डू, लो व्हाट से आंसर हो गया। ये आंसर फॉर्मेट है, ये है डूअर, ये है डूअर, ये है डूअर, एंड ये जो डू है ये है एक्शन, और डू टाइम वर्ड हिडन है, शॉर्ट फॉर्मेट में डू टाइम वर्ड हिडन। तो मैंने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट से आंसर, व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्मेट, तो क्वेश्चन में इस चीज का नाम जाने क्या, और व्हाट के बाद आंसर फॉर्मेट, तो व्हाट का मीनिंग होता है जो आप करते हैं। व्हाट यू डू जो आप करते हैं, व्हाट यू ईट जो आप खाते हैं, व्हाट यू राइट जो आप लिखते हैं, व्हाट यू सिंग जो आप गाते हैं, व्हाट यू ड्रिंक जो आप पीते हैं, व्हाट यू ईट जो आप खाते हैं। ओके, दैट्स इट। मैंने पूछा कि कहाँ आप काम कहाँ करते हो, वेयर डू यू डू द वर्क, वेयर डू यू डू द वर्क। अब मैंने वेयर से क्वेश्चन किया, मैंने वेयर से क्वेश्चन किया, देखो ये टाइम वर्ड, टाइम वर्ड, ये डूअर, ये डूअर, ओके, टाइम वर्ड डूअर एक्शन क्वेश्चन। अब मैं भाई वेयर से आंसर भी दे सकता हूं। अगर वेयर से आंसर देना है तो बस वेयर के बाद आंसर फॉर्मेट लगा दो। आपको पता है आंसर फॉर्मेट क्या होता है, आपको पता है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, बस। तो भाई आप काम कहाँ करते हो, वेयर डू यू डू द वर्क, जहां आप करते हो, वेयर
यू डू द वर्क। नो, वेयर से आंसर भी होगा। सेम, आप काम को कैसे करते हो, हाउ डू यू डू द वर्क। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन फॉर्मेट, जैसे आप करते हो। है ना, आप काम को कैसे करते हो, हाउ डू यू डू द वर्क, जैसे आप करते हो, हाउ यू डू द वर्क। आप काम को किसके साथ करते हो, विद whom डू यू डू द वर्क। क्वेश्चन फॉर्मेट, जिसके साथ आप करते हो, विद whom यू डू द वर्क। कब करते हो काम, व्हेन डू यू डू द वर्क। क्वेश्चन, जब आप करते हो, व्हेन यू डू द वर्क। अगर है ना, व्हाट के बाद अगर क्वेश्चन फॉर्मेट है तो व्हाट का मीनिंग हो गया, अगर व्हाट के बाद आंसर फॉर्मेट है तो व्हाट का मीनिंग हो गया जो। वेयर के बाद क्वेश्चन फॉर्मेट है तो वेयर का मीनिंग हो गया कहाँ, और वेयर के बाद आंसर फॉर्मेट है तो वेयर का मीनिंग हो गया जहां। हाउ के बाद अगर क्वेश्चन फॉर्मेट तो हाउ का मीनिंग हो गया कैसे। हाउ के बाद आंसर फॉर्मेट है तो हाउ का मीनिंग हो गया जैसे। ओके। विद whom के बाद अगर क्वेश्चन फॉर्मेट है तो विद whom का मीनिंग हो गया किसके साथ, और विद whom के बाद आंसर फॉर्मेट है तो इसका मीनिंग हो गया जिसके साथ, तो इसका मीनिंग हो गया जिसके साथ। अगर व्हेन के बाद क्वेश्चन फॉर्मेट है तो इसका मीनिंग हो गया कब, और व्हेन के बाद आंसर फॉर्मेट है तो इसका मीनिंग हो गया जब। दैट्स द थिंग। ओके, दैट्स द थिंग। इतना है, ये है काम। सर गॉट इट। ओके, दैट्स द थिंग, है ना। हम इसको कन्वर्ट्स कराएंगे, जैसा जैसा होता है चीजें, हम आपको अपनी तरीके से अच्छे से इसको बार बार बुलवाएंगे। इसका कॉन्वर्सेशन लिखेंगे भी, लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे, बोल के भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आज आज मैं आपको ये कन्वर्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता चला है कि कल का कॉन्वर्सेशन कुछ खास नहीं हुआ है, और बहुत लोगों ने एक बार में सही से आंसर नहीं दिया है, तो आज एक दिन और आपको कल वाला ही कॉन्वर्सेशन करना है। ये जो वेयर से वाई से क्वेश्चन, व्हाट से आंसर, वेयर से क्वेश्चन वेयर से आंसर, हाउ से क्वेश्चन हाउ से आंसर, ये कॉन्वर्सेशन हम बाद में करेंगे, कल करवाऊंगा मैं। आज आपको कल वाला ही, आपको याद होगा कल वाला क्वेश्चन था, कल वाला कॉन्वर्सेशन था हमारा, कि तीन डुअर से तीन तरीके के डुअर होते हैं, और तीनों के बारे में क्वेश्चन करना है, पॉजिटिव फॉर्मेट, लाइक लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट में आंसर देना है बिना किसी गलती को किए, और गलती करने पर आपका चांस चला जाएगा। तो उसी पे अच्छे से थोड़ा सा कन्वर्स करना है। अभी मैं आपको टास्क बता दूं। अभी देखो, कोई भी किसी को लिखने का टाइम नहीं है। आपको ये काम क्लास के बाद और कॉन्वर्सेशन के बाद लिख कर सबमिट करना है, जो मैं काम अभी देने वाला हूँ। अभी मैं आपको काम दे देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या है काम, कैसे करना है आपको, और वो कॉन्वर्सेशन के बाद आपको लिखना है, और हिंदी के साथ लिखना है, और शेयर करना है। ओके। देखो, अब मैं आपको कुछ एक्शंस दे रहा हूँ। आई एम गिविंग सम एक्शंस। डोंट राइट इट राइट नाउ, अभी नहीं लिखना है। आई विल शेयर द फोटो इन द क्लास। तो देखो, इस वाली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, ये स्लाइड। तो मैं कुछ एक्शन दे रहा हूं। एक्शन है राइट, एक्शन है डू, एक्शन है रीड, एक्शन है लर्न, एक्शन है स्टडी, और एक्शन है बाय। अब देखो आपको करना क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाट डू यू नीड टू डू। लेट मी टेल यू व्हाट डू यू नीड टू डू। देख लीजिए आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, है ना, ये अभी नहीं लिखना है। अभी आपको कॉन्वर्सेशन, अभी कॉन्वर्सेशन का मेन काम है आपका। तो देखो करना क्या है, क्लास के बाद जब कॉन्वर्सेशन फिनिश हो जाए, तो उसके बाद आपको इस टास्क को पूरा करना है। एक्शन है राइट। ओके, राइट। अब आपको वर्ड से क्वेश्चन बनाना है, वर्ड से आंसर बनाना है, और उसकी हिंदी भी लिखनी है ना। वर्ड से क्वेश्चन, एक एक्शन लेना, आपने राइट एक्शन लिया, और आपने राइट एक्शन से क्वेश्चन बनाया, वर्ड से क्वेश्चन बनाया, और आंसर बनाया हिंदी के साथ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। आपने लिखा व्हाट डू यू राइट, आप क्या लिखते हैं, है ना। आपने इंग्लिश लिखा, फिर हिंदी लिखा, व्हाट डू यू राइट, आप क्या लिखते हैं, फिर आपने हिंदी लिखा व्हाट यू राइट, जो आप लिखते हैं। ओके। तो वर्ड से आपने क्वेश्चन बनाया, उसका हिंदी लिखा, आपने वर्ड से आंसर बनाया, उसका हिंदी लिखा। फिर आपने वेयर से क्वेश्चन बनाया, उसका हिंदी लिखा, आपने वेयर से आंसर बनाया, उसका हिंदी लिखा। फिर आपने हाउ से क्वेश्चन बनाया, उसका हिंदी लिखा, हाउ से आंसर बनाया, उसका हिंदी।
फिर विद होम से क्वेश्चन उसका हिंदी, और विद होम से आंसर उसका हिंदी, और एक और इसके बाद, है ना, इसके बाद आपको क्वेश्चन करना रहेगा, देन यू विल आस्क द क्वेश्चन। फिर व्हेन से भी क्वेश्चन करना, व्हेन, व्हेन से क्वेश्चन, व्हेन डू यू, व्हेन से क्वेश्चन करना मीन्स टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, और इसका मीनिंग हो जाएगा कब। और व्हेन से आंसर देना, व्हेन डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, और आंसर देना, और तब हो जाएगा जब। तो जब आप एक एक्शन लेंगे, आप एक एक्शन राइट लेंगे, और अपनी नोटबुक में उस एक एक्शन से वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे, उसकी हिंदी लिखेंगे, वर्ड से आंसर बनाएंगे, उसकी हिंदी लिखेंगे, वेयर से क्वेश्चन बनाएंगे, उसकी हिंदी लिखेंगे, वेयर से आंसर बनाएंगे, हिंदी लिखेंगे, हाउ से क्वेश्चन बनाएंगे, हिंदी लिखेंगे, हाउ से आंसर बनाएंगे, हिंदी लिखेंगे, विद होम से क्वेश्चन हिंदी, विद होम से आंसर हिंदी, व्हेन से क्वेश्चन हिंदी, व्हेन से आंसर हिंदी। इतना समझ में आया? किसी को समझ में आया क्या है टास्क, क्लास के बाद का टास्क क्या है ना, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, और डाउट होगा तो आप लोग कॉल कर लेना, क्लास के बाद कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा अच्छे से। समझ में आ रहा है कि सबको? और यस हिंदी, सर। है ना, ऐसे एक बार आप लोग हिंदी लिख लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आखिर व्हाट के बाद क्वेश्चन का क्या फंडा है, और व्हाट के बाद आंसर का क्या फंडा है। एक बार आपको समझ में, जब हिंदी लिखोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, व्हाट के बाद ये आता है, ऐसे आया तो ये होता है। तो इतना कॉन्वर्सेशन के बाद आपको लिख के शेयर कर देना है ग्रुप में, हम चेक करेंगे। याद रहे आज का जो टास्क करेंगे उसमें आपको हिंदी भी लिखना है, नहीं तो पता चला आपने व्हाट के बाद आपने आंसर फॉर्म में लिखा और आपने लिख दिया क्या, है ना, कि आप क्या करते हो, नहीं। सो दिस इज अ टास्क विच विल डू आफ्टर द कॉन्वर्सेशन। और अभी कल का कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करना है, बिकॉज कल का कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं हुआ है। लाइक गिनती के गिनती के एक या दो नाम आए हैं मेरे पास, जिन्होंने बोल पाए, जो लोग बोल पाए बिना किसी गलती के, और जो जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है लेकिन जो सही बोल पाए। उसके अलावा मुझे पता चला है, आई गॉट टू नो दैट नो बडी इज एबल टू स्पीक द थिंग्स इन अ गुड वे एंड दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। सो अगेन यू नीड टू डू द सेम थिंग्स, माइंड में चीजें चलनी चाहिए, आप वो प्रैक्टिस करो। शुभम सर इज देयर, शुभम सर आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. है ना, थोड़ा कन्वर्सेशन करवा दो सर, आज थोड़ा ज्यादा ही कन्वर्सेशन करा दो इनको उस वाली चीज पे। और फिर बताना कि कितने लोग ढंग से कन्वर्स कर पा रहे, कितने लोग सही से बोल पा रहे, देखे तो हम भी। ओके, एंड Okay, sir. और ये वाला कॉन्वर्सेशन हम कल करवाएंगे, है ना, आप अच्छे से एक बार लिख के इसे शेयर करें, ताकि हमें पता चल जाए आपको समझ में आ गया, कन्वर्सेशन में सही रहेगा इसे। एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, दे कैन आस्क मी, बिकॉज द कॉन्वर्सेशन इज गोना स्टार्ट टुडे सून अर्ली। एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, यस सर। प्लीज गो अहेड। सर क्वेश्चन की बस हिंदी लिखनी है या आंसर की भी, मतलब आंसर की दोनों भी, में? आंसर की भी, बोथ 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 बोथ, ओके सर। क्वेश्चन आंसर भी, बिकॉज क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो हमें यही समझना है कि वर्ड से जब आंसर होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो बोथ। ओके। ओके, एनीबडी एल्स? आई गेस सुनो, नो बढ़िया, सर। है ना। कल वाली चीज को सर अच्छे से रगड़ के कन्वर्ट्स कर दो। कोई भी प्लीज, है ना, कोई भी ऐसा मत सोचना कि सर कुछ नया कन्वर्ट्स कराओ आ गया, भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक चीज को जब बार बार आप बोलेंगे तभी कमांड आएगा, तभी कॉन्फिडेंस से बोलेगा, है ना। तो प्लीज ऐसा आप लोग मत सोचना कि सर एक ही चीज कितनी बार, भैया करते रहो कन्वर्ट्स। हम डेली एक ही चीज तो बोलते हैं, हिंदी में भी तो हम एक ही चीज बोलते हैं, बस बातों को बना बना के बोलते हैं। तो माइंड मत करना, बिलीव करना, प्रोसेस काम करता है, प्रोसेस कुछ इस तरीके से ही काम करता है। कॉन्वर्सेशन कीजिए। शुभम सर, आई एम मेकिंग यू द होस्ट, एंड मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आफ्टर द कॉन्वर्सेशन यू नीड टू राइट इट डाउन, एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू स्पीक इन अ गुड वे टुडे। ओके शुभम सर, Yes, sir. लेट्स सी।